जय हिंद दोस्तों। माय सेल्फ दृष्टि गोयल और मैं आज सभी का एसएसबी क्रैक टॉक्स पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए 149th कोर्स की मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आउट हो चुकी है। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही कैंडिडेट के साथ जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू ना ही केवल एनडीए रिटर्न्स बट एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर किया और मेरिट लिस्ट में 85th रैंक प्राप्त किया। सो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर गौरव सिंह का और जानते हैं बिना किसी कोचिंग के कैसे उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का ये सुनहरा सफर तय किया। हाय गौरव, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. Welcome to SSB Crack Exams and many congratulations for a recommendation for NDA 149th course. Thank you, ma'am. Okay, how are you feeling after getting recommendation in your very first attempt? I'm feeling great, ma'am. I guess it's one of the best feelings that I've got since this years of my life. It has been great right from the moment I got recommended. So as we know that many people face this fear of their first SSB as they are not much aware about how they should prepare. So can you highlight some of the tips for the aspirants who are going for their very first attempt and especially for the NDA entry? Yes, ma'am. There has been many myths, ma'am, across the society and across the website that about SSB and all. And even I was little scared when I was going for the SSB. But once when I went through it, I just got realization that it is not. It's just a simple test. It is a simple personality test that tests your personality, who you are, and what qualities do you possess. That's it. You just have to show what qualities do you have and what and how you are capable and how you can contribute to the organization that you're going to be part of. And if you possess those qualities that are needed to be an officer of Indian Armed Forces, then you will get recommended and you will get selected. Just have confidence on your abilities and your strengths. So how did you work towards those qualities and how did you imbibe them in yourself? Right, ma'am. As far as the qualities are concerned, like there are 15 officer-like qualities. I first write them down and I worked on them one by one. Like there are many qualities like discipline is there, endurance is there, speed is there, decision making is there. So in daily activities, like in a school as well, organizing sports event, organizing many other events, and participating in speeches, debate competitions, quizzes, and interaction with your friends, with your families, and with your mentors. It helps you to develop those qualities and improve vice versa. And reading books, knowing the defense updates, knowing the latest updates that are going on in and out of the country. This all things and improving, I would say, communication skills. Communication skills matter a lot. Spoken English, this all things matter a lot in the SSB, and just work on that. Try to speak English with your friends, with your family, in the school itself. Interact with with your friends in English, and that will help you to improve this trait. सो आपको जैसे पता है कि टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएसबी। जैसे कि आपका रिटर्न क्लियर हुआ होगा तो उसके बाद यू मस्ट हैव मेड सम काइंड ऑफ रूटीन फॉर योरसेल्फ। सो विल यू लाइक टू हाईलाइट दैट रूटीन? उसमें आपने क्या क्या ऐसी चीजें रखी जिसने आपके रिकमेंडेशन में हेल्प किया? जैसे रिजल्ट आ गया था हमारा, तो मुझको पता था कि मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से। और जो मुझको पता था कि एसएसबी थोड़ा सा टफ पार्ट है, रिटर्न तो फिर भी निकले, एसएसबी थोड़ा सा है, उसके लिए अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और बस मैंने वही रूटीन बना दिया कि उस टाइम हमारे एग्जाम्स सब कुछ हो गया था, 12th पास हो चुकी थी मेरी। तो बस मैंने लगा लिया कि सुबह से शाम तक अपनी फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्लस रूटीन एग्जाम्पल प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओआईआर होना चाहिए, एसआरटी, वेट प्रैक्टिस उसके अंदर होनी चाहिए, एंड ऑल डिफेंस अपडेट्स के बारे में जानना, करंट अफेयर्स के बारे में जानना, ये सब उसके अंदर होना चाहिए। उसको डिवाइड करेंगे अच्छे से तो अपन क्लियर कर सकते हैं। ये हम चीजें जरूर। और जैसे कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो क्या आप मुझे बताओगे कि राजस्थान से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू में? राइट मैम, वो ज्यादा तो मुझे पूछे थे क्योंकि हम लोग वाइजैक गए थे इंटरव्यू के लिए। सो वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन हमारा जो मतलब रीजन है उससे काफी सिमिलर है। हालांकि हम राजस्थान में, लेकिन जो हमारा रीजन थोड़ा गुजरात के क्लोज आता है, महाराष्ट्र के क्लोज आता है, तो इसके वजह से थोड़ा ह्यूमिड और थोड़ा सा अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है। तो उससे रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। प्लस हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइडिंग है, फैसिलिटीज क्या क्या है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्या क्या, एजुकेशन फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है हमारे रीजन में, प्लस राजस्थान में कैसे डेवलपमेंट्स हो रहा है एट प्रेजेंट गवर्नमेंट वो क्या कर रही है एजुकेशन फील्ड के अंदर, हेल्थ फील्ड के अंदर, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे।
ओके, सो जैसा कि आपने मुझे बताया था कि यू हैव अपीयर्ड फॉर एनडीए ट्वाइस, है ना? और Yes, पहले अटेम्प्ट में आप सिर्फ 1 मार्क्स की वजह से रह गए थे, और वो भी मैथमेटिक्स में। right, सो ma'am. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, और फिर उसको आपने कैसे कॉप अप किया दैट यू क्लियर्ड इट इन योर सेकंड अटेम्प्ट, और आप फिर रिकमेंडेशन की तरफ भी आप गए? सो पहले आप रिटर्न के बारे में थोड़ा सा बताइए एक्सपीरियंस के। यस मैम, वो पहली बार जब वो 1 मार्क्स से रह गया तो बहुत बुरा लगा था। आई गेस क्योंकि 15 दिसंबर वो डेट थी, मुझे याद है अब तक। और 7:30 बजे थे और जब हम्म। रिजल्ट आया तो बहुत रोया था मैं। बहुत रोया था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, लगभग 1 साल लगाया था उसके पीछे। और फिर जब नहीं हम्म। हुआ तो बुरा लगा था। लेकिन फिर मैंने जब वर्क किया तो मुझे पता चला कि पीवाईक्यूज में लैग कर रहा था। पीवाईक्यूज हो गया और फिर जो मेन टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं उस पे मैंने वर्क नहीं किया। मैंने सब टॉपिक्स मतलब इक्वली किए। हम्म। और बहुत सारे टॉपिक्स जिसमें क्वेश्चन कुछ आते भी नहीं है लेकिन हम ऐसे ही कर लेते हैं। फिर मैंने उस पर वर्क किया, जो मेन क्रूशियल टॉपिक्स है उन पे वर्क किया, उनके एग्जाम्पल्स लगाए, फिर उनके पीवाईक्यूज लगाए। और जो जो इम्पोर्टेंट है, लाइक मैंने पहले जियोग्राफी पार्ट से पॉलिटिक्स पार्ट को ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन उतना वेटेज रखता नहीं एक्चुअली पेपर के अंदर। फिर वो मैंने इंप्रूव किया, इंग्लिश को और इम्प्रूव कर दिया मैंने। इंग्लिश में थोड़ी सी मेरी कम क्वेश्चंस कम क्लियर हो पाए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो मैंने इम्प्रूव किया। हम्म। प्लस जीएटी सेक्शन में मैंने अपने जो साइंस सेक्शन है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वहाँ से क्वेश्चन कोई भी मिस ना हो। और मैथ्स में मैंने जैसे कहा पीवाईक्यू से अगर वर्क करेंगे तो पेपर आसानी से क्लियर हो सकता है। और जैसे कि एक भी मिथ है कि विदाउट कोचिंग नोबडी कैन क्लियर एनडीए, लेकिन आपने सेल्फ प्रिपरेशन से ही, ना कि सिर्फ रिटर्न, और आप तो रिकमेंड भी हुए हो, तो वो आपने कैसे किया? लाइक व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर दैट, कि अब बिना किसी के गाइडेंस के भी यू ट्राई टू प्रिपेयर एंड यू इवन क्लियर्ड इट? राइट मैम, ये तो होता ही है। और मुझे भी कभी एक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट आए थे मेरी मेरी मतलब प्रिपरेशन में भी। मुझे लगा था कि शायद मुझे जाना चाहिए था, इवन एसएसबी के टाइम मुझे जाना चाहिए था कोचिंग के, लेकिन फिर वो लगा कि अब उन खुद एक बार ट्राई मारता हूँ। मैंने ये था कि रिटर्न के टाइम में मैंने पहले ट्राई किया था कि रिटर्न तो खुद कर सकता हूँ मैं। तो मुझे लगा था कि पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर थोड़ी सा अच्छे से मेहनत की जाए, एकदम राइट वे में, राइट राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत करें तो पेपर क्लियर हो सकता है। और एसएसबी का कंसर्न है तो आई वुड से जीटीओ थोड़ा सा रहता है। जीटीओ थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, उसके लिए कोचिंग थोड़ी जरूरत होती है। लेकिन अगर हम घर पे फोकस्ड है, और जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत हेल्प करती है उसके अंदर। अपने अपने आपके ऊपर एक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आप अपनी टीम को कैसे लीड करते हो, आप टीम के कैसे कम्युनिकेट करते हो टीम के साथ, वो बहुत जरूरी होता है जीटीओ के अंदर। और वो आपको स्पोर्ट्स सिखा सकता है, टीम स्पोर्ट्स रहे, क्रिकेट ले गया, जिसमें क्रिकेट खेलता हूँ मैं, वॉलीबॉल खेलता हूँ। तो ये सब गेम्स हेल्प करते हैं आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में, जो कि आपको जीटीओ में ऑटोमेटिकली हेल्प कर देता है। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे अंदर, हमेशा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, चलो कुछ भी हो जाए, एक बार ट्राई ट्राई तो करते, बाकी देखा जाएगा क्या होता है। सो फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस मोटिवेशन कि हाँ यार आपको डिफेंस में ही जाना है? जैसे कि आप बताए थे बचपन से इट वाज योर ड्रीम टू गेट इनटू डिफेंस, एंड दैट टू स्पेसिफिकली इन नेवी। तो ये कहाँ से आया, और आपको नेवी में ही क्यों जाना था? इसमें ऐसा है कि जो मेरे मम्मी हैं, मम्मी के मामा जी, हम्म। वो पहले इंडियन नेवी में रह चुके कुछ साल। उसके बाद उन्होंने वो वहाँ से रिजाइन करके रिटायरमेंट लेके उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, अभी मर्चेंट नेवी में ही है वो। तो मुझे उनके उनके मतलब उनके द्वारा पता चला कि कुछ मर्चेंट नेवी जैसा कुछ होता है, नेवी जैसा कुछ होता है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मुझे मैंने और सर्च किया, रिसर्च किया इसके ऊपर। और मुझे पता चला कि इंडियन नेवी भी कुछ चीज़ है, मतलब डिफेंस फोर्सेस एंड ऑल। आर्मी का मुझे पता था, लेकिन मुझे इससे हम्म। और ना एयरफोर्स ना नेवी का नहीं पता था। जब पता चल गया नेवी के बारे में तो मैंने और पढ़ा, बुक्स पढ़ी मैंने बहुत सारी। जैसे कि डिफेंस बुक्स है, ब्रेव वगैरह है, इंडियाज मोस्ट फियरलेस, और मूवीज है, बॉर्डर, उरी, ये सब मूवीज ने बहुत हेल्प किया। मोटिवेशन अंदर जगह रखा है, करना है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया 9th और 10th में डिसाइड किया था कि मुझे जाना तो एनडीए जाना है बस। फिर तो बस खत्म होते मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और बस हमेशा से वही रहा है, डिफेंस ज्वाइन करना है, कि डिफरेंट लाइफ है ये एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स एंड अदर प्रोफेशंस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से काफी डिफरेंट दुनिया है। ओके, और नेवी से स्पेसिफिक आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक फॉर ऑल दोस्त जो नेवी के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यस आपकी क्या सजेशन रहेगा कि कितनी प्रिपरेशन उन्हें नेवी के रिगार्डिंग करना चाहिए? यस मैम, आई गेस जैसे कि अब नेवी इंटरव्यू में जाए तो नेवी के बारे में एकदम बेसिक नॉलेज सबको होना ही चाहिए, अबाउट कमांड्स, अबाउट देयर चीफ्स, अबाउट द flag officer commanding in chiefs of the different commands of the Indian Navy, also different kind of ships that Indian Navy operate, the submarines the Indian Navy operates, and also the aircraft carriers and the aircrafts that Indian Navy that are being used in Indian Navy. Also हम्म। different exercises that are being conducted between the different navies of like the India and bilateral, multilateral exercises. So these all things I would say enough for the interview part as far as the Navy is concerned.
Okay, so I'll start from the starting for SSB now, ठीक है? So you know that is stage 1 there, and which is actually very tricky part. सबको लगता है कि यार स्क्रीनिंग हो जाएंगे तो we'll see, है ना? ज्यादातर बच्चे इवन कुछ भी प्रिपेयर नहीं करते, उनको लगता है कि स्क्रीनिंग इज द अल्टीमेटम. राइट मैम, मैं गेस स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर पहले दिन घर जाना पड़ेगा. मुझे भी अंदर था वो, तो मुझे पता था क्या, मेरे को किसी ने बताया था कि OIR जो है उसका वेटेज काफी रहता है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा वर्क किया, बहुत ज्यादा वर्क किया. मैंने बुक खरीदी, बहुत एग्जाम्पल्स ट्राई किए वगैरह, और OIR डिफरेंट OIR मतलब सेट्स खुद से एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किए, उनको मैंने प्रैक्टिस की, और इससे बहुत हेल्प हुई मेरे. इसकी वजह से मेरा OIR बहुत अच्छा गया था. और फिर जो दूसरा टेस्ट जैसे PPDT होता है, उसके लिए आई गेस अपने पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, और ग्रुप डिस्कशन स्कूल स्किल्स है, डिस्कस कर सकते हो आप कॉन्फिडेंस है अपने अपने मतलब थॉट्स अपने वर्ड्स के ऊपर, तो यू कैन क्लियर इट इजीली. और बाकी तो इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोसेस, जस्ट सिंपल रखिए कोई भी चीजों को, तो आसानी से क्लियर हो सकता है. तो जब फर्स्ट टाइम पे स्टोरी लिखी आपने, तो आपने क्या चीजें माइंड में रखी कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड, और क्या डिफिकल्टीज फेस करी और उनको ओवरकम कैसे किया? राइट मैम, फर्स्ट टाइम जो स्टोरी लिखी मैम, उसमें काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि पहली बार जब स्टोरी लिखते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, और वहाँ पे इतना टाइम मिलता नहीं है एक्चुअल टेस्ट में. तो मैंने उस पर इम्प्रूव किया कि जिससे टाइम कम कैसे कम किया जाए, उस टाइम को जितना हो सके कम किया जाए. प्लस जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स है एक स्टोरी के अंदर, कैरेक्टर्स, उनका मूड, फिर उनकी एज, उनका जेंडर वगैरह, उन सबको मेंशन अच्छे से किया जाए, उनका रोल क्या है उस स्टोरी के अंदर उसको मेंशन किया जाए. वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस कर जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और फिर वो वहाँ पे दिख जाएगा टेस्ट के दौरान. ओके, सो अभी स्टेज 2 की अगर बात करें, सो देयर आर 3 मेन टास्क, राइट? योर साइक, योर आईओ एंड योर जीटीओ. सो आउट ऑफ Right. दीस 3, which one was your favorite and which went best for you? My favorite was GTO, but my Mm-hmm. psychological test went really good, I would say. It was really good. I attempted, I remember 54 SRTs. That was highest in Mm-hmm. my board. It was highest in my board. The GTO, and I loved GTO, but it didn't went that really well. The lecture it Mm-hmm. and other that discussion topics, discussion test. Then they didn't went that well. ओके, सो अगर पहले साइक की बात करेंगे, तो साइक अभी अगेन मैंने काफी बच्चों से बात की, उनको लगता है मैम हमारी साइक खराब है ना? वी आर नॉट एबल टू पुट फॉरवर्ड आवर थॉट्स इन द साइक टेस्ट. सो वो आपके मन Right. में भी आया था कि यार ये साइक कैसे करना है, ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हम एनकाउंटर कर रहे हैं, है ना? जब प्रिपरेशन करी होगी तो, और फिर आपने कैसे सारे टास्क के लिए प्रिपरेशन करी और आप इतने अच्छे से परफॉर्म कर पाए फिर? राइट मैम, ये थोड़ा सा होते मिथ है, मैं भी मानता हूँ ये. लेकिन मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि उन्होंने बोला था कि जैसे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो बस यही देखते हैं कि आपके अंदर आप एक नॉर्मल साइकोलॉजी मतलब क्या कहते पोजेस करते हो, आपको इविल माइंडेड नहीं है, आपको एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है, बस वही चेक किया जाता है. आपको जो नॉर्मल साइकोलॉजिकल है, आप कैसे थिंक करते हो, आप जो मतलब पर्सन जो आप एक्चुअली में हो, अगर आप वही दिखाओगे तो भी वो क्लियर हो सकता है. इसको ज्यादा हाइप बनाने की जरूरत नहीं है. साइकोलॉजिकली से सबसे इजिएस्ट टेस्ट भी है ये. इन तीनों सेकंड जो मतलब सेकंड स्टेज में टेस्ट होते हैं, सबसे इजीएस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट ही है. आपको स्पीड होनी चाहिए जरूर, क्योंकि आपको लगातार 11 से 12 स्टोरी लिखनी होती है एक साथ, तो स्पीड होनी चाहिए. लेकिन अगर नॉर्मल थॉट प्रोसेस है और उस पर वर्क करोगे तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो. और जैसे कि अगर मेरी प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने बुक खरीदी थी, SSB क्रैक की, ब्रेकिंग द कोड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. उसने बहुत हेल्प किया मुझे. काफी स्टोरीज है उसके अंदर, प्लस काफी एग्जाम्पल्स है उसके अंदर, जिसने मुझे हेल्प किया. मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए, SRT बैठ के मैंने खुद एग्जाम्पल्स अपने आप से बनाए थे, वो मैंने प्रैक्टिस किया, उससे कुछ हेल्प हो गया और अच्छे से फिर वो निकल गया. ओके, और आप कुछ बताना चाहोगे जो फ्रेशर्स हैं उनको जैसे आइडिया नहीं है, तो किस टाइप की पिक्चर्स आपको दिखाए गए थे और वैट वर्ड्स कुछ आपको अगर याद हो, या फिर 1 or 2 सिचुएशंस व्हिच यू कैन मेंशन? यस मैम, आई वुड से पिक्चर्स की बात करें, पिक्चर्स नॉर्मल पिक्चर्स होती है. स्कूल की पिक्चर्स हो गई, किसी जंगल की पिक्चर हो गई, लोग भाग रहे हैं, किसी ट्रिप पर माउंटेनियरिंग की पिक्चर हो गई, प्लस किसी बोट में 2 लोग फंसे हुए वो पिक्चर हो गई. ये पिक्चर्स नॉर्मल पिक्चर होती है, एकदम क्लियर होती है. आपको फर्स्ट इंसाइट में पता चल जाता है क्या लिखना है आपको, तो फर्स्ट थॉट होता है बस वही उतारना है, बाकी कुछ सोचना होता नहीं है इसके अंदर. और वेट के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे मतलब नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो डेली रूटीन में एक मतलब पर्सन यूज करता है. जैसे कि हो गया अपने वर्क, हार्ड वर्क, प्लस एक्टिविटी, जेल, एनिमी, लव, ये सब नॉर्मल वर्ड्स जो कि यूज होते हैं नॉर्मल रूटीन में, वो ये पूछे जाते हैं. और एसआरटी में नॉर्मल पूछे जाते हैं कि अगर आप मतलब मुझे कुछ क्वेश्चन याद है तो उसमें ये था कि अगर आपके पास वाले घर में आग लग गई है
तो आप क्या करोगे, या फिर आप किसी बोट में, तो आप 2 लोग फंस गए बोट में, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या करोगे उसके अंदर। और फिर ऐसा हो गया कि आपको घर जाना है, कुछ पैसे लेके बैंक जाना है, और तो रास्ता थोड़ा खराब है, मतलब थोड़ा डकैट्स वगैरह भी है उस रास्ते में, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप कैसे उसको, उस एक्टिविटी को मतलब अकम्प्लिश करेंगे। से नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एकदम 1 सेकंड लगता है सोचने में, अगर सोच से फर्स्ट थॉट ही अगर आप इम्प्लाई करेंगे तो वो हमेशा राइट ही होता है, बाकी कुछ ज़्यादा सोचने जाएंगे तो फिर वो डिफिकल्ट होता जाएगा। राइट, सो बेसिकली ट्रिक वही है कि जो आपको फर्स्ट सबसे पहले दिमाग में आ रहा है वो लिख दो यस एंड जस्ट मैम। मूव फॉरवर्ड, राइट। यस मैम। ओके, अभी बात करेंगे तो पूरे एसएसबी टास्क में तो सिर्फ एक ही टेस्ट है जो हमें पहले से पता है कि एज इट इज यही आने वाला है, वो है हमारा एसडीटी, राइट, सेल्फ राइट। डिस्क्रिप्शन। सो वो आपने वो कैसे प्रिपेयर किया, और क्या पॉइंट्स आप बताना चाहोगे हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कि उनको पुट फॉरवर्ड करना चाहिए फॉर द एसडीटी? राइट मैम, एचडी का पार्ट है तो मैंने मैंने अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से बात की थी एक्चुअली, कि आप वो हम्म। अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, मतलब क्या क्वालिटीज जो मेरे अंदर अच्छी है, क्या क्वालिटीज जो मुझे इंप्रूव करनी चाहिए एक्चुअली में। उन सबने मुझे बताया भी, मुझे अच्छा एकदम इंसाइट मिल गया कि हाँ मुझे ये सब पे वर्क करना चाहिए। और मैंने खुद भी इंट्रोस्पेक्ट किया बहुत सारा, कि मुझे क्या क्या हम्म। ज़रूरत है इंप्रूव करने की, क्या क्या मैं कर सकता हूँ और इसके अलावा, और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करती है वगैरह। उससे अगर आप इसमें आई वुड से इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जो अपने पीपल, आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करोगे तो आपको अच्छे से जानते हैं, हम्म। आपसे ज़्यादा अच्छे वो जानते हैं आपको, आपके दोस्त है, आपकी फैमिली है। उनसे पूछोगे तो आपको अच्छे से बता देंगे कि हाँ आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या क्या अच्छा आपके अंदर, क्या क्या बुरा है, तो उससे आप फुट फॉरवर्ड कर सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और बाकी तो और मैं कहूँगा काफी हॉनेस्ट रहेंगे इसके अंदर, जो आप है वही बताएंगे तो वो सही रहेगा। अगर कुछ अब वो अपने कुछ देख वेख के बताएंगे तो पकड़ लेंगे, हम्म। वैसे ज़्यादा स्मार्ट है आपसे। राइट, सो काफी स्टूडेंट को ऐसा मिथ भी है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स भी पुट फॉरवर्ड करना चाहिए इन एवरीबॉडीज ओपिनियन। सो यस उस मैम। पे आपका क्या स्टैंड है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, अगर से पॉजिटिविटी रखें, क्योंकि आप आर्म फोर्सेस का ऑफिसर है, किसी और मतलब फील्ड में जा रहे हैं, आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, आपके जवान को सबको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है आपका। तो इसलिए पॉजिटिव रखे। नेगेटिव कभी कभी होता है, लेकिन हर चीज में नेगेटिविटी मत मतलब रखिए, जिस चीज में जरूरी है उसमें जरूर रखिए, लेकिन ज्यादा हो सके तो पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। मतलब एक सजेशन या फिर डिस्कशन चल रहा है उसको एंड करने के लिए, उसको मतलब गुड वे में लेके जाइए, ना कि उसको मतलब हेल्प लाइए या फिर उसको रोके नेगेटिव वे में लेके जाइए उसको। ओके, सो नाउ आई टॉक अबाउट योर इंटरव्यू। ओके। सबको डर लगता है इंटरव्यू से, है ना, क्योंकि इट इज देयर फर्स्ट टाइम, स्पेशली फॉर एनडीए चैम्प्स, दे आर गोइंग फर्स्ट टाइम आफ्टर देयर 12th फॉर सच काइंड ऑफ इंटरव्यू। तो क्या आपको भी डर लग रहा था, और अगर हाँ तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसे इंटरव्यू स्कूल में दिया था, हेड बॉय उसके लिए, बट पहली बार ऐसे बाहर किसी और भी नेवी ऑफिसर के सामने तो ऐसा पहली बार जगह, तो मुझे बहुत बहुत डर लग रहा था। लेकिन जैसे फिर अंदर गया तो जैसे जैसे इंटरेक्शन होती गई उनके साथ, तो नर्वस नर्वस सब कुछ चला गया। फिर बस वही इंटरेक्शन, नॉर्मल इंटरेक्शन चालू हो गई थी मेरे और उनके बीच में, इंटरव्यू ऑफिसर के बीच में। और बस वो नॉर्मल पूछे थे क्वेश्चन, और जो पूछे थे उसका जवाब देना था बस, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं थी उसके अंदर। सो ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चंस जो आपको लग रहा हो कि यार ये क्या पूछ लिया, अब इनको कैसे टैकल करना, तो वैसा कोई क्वेश्चंस थे तो आपने उनको कैसे टैकल किया? मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, बस उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, मेरे पीवाई क्यू जो फॉर्म था उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन पूछे थे, और मेरे फ्रेंड्स के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरी एजुकेशन के बारे में, और क्या क्या मैं एज अ यंगस्टर मैं क्या क्या करता हूँ टू मेक माई सेल्फ, टू रिमेन माई टू मेंटेन माई सेल्फ फिट, टू मेंटेन माई सेल्फ अपडेटेड विद द करंट ongoing अफेयर्स। करंट अफेयर्स, ऑनगोइंग डिफेंस डेवलपमेंट्स एंड ऑल। बस नॉर्मल क्वेश्चंस थे, उनका आंसर देना होता है आपको बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, सो ही डिडंट ट्राई टू लाइक डिग यू समवेयर कि आपसे नो मैम। मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कहीं पे भी? नो मैम, ही वाज वेरी लीनिएंट, आई वुड से ही वाज वेरी लीनिएंट। ओके, सो इंटरव्यू के लिए आपकी तरफ से क्या सजेशंस रहेगा फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस मैम, आई वुड से बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, जस्ट बी ऑनेस्ट। आप जो है वो बताइए, और कुछ ज़्यादा मतलब तोड़ मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको, जैसा आपने आज तक किया है, जैसे आपकी लाइफ रही है अब तक, वही पूछते हैं, और तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पूछते नहीं है। बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहिए, जो चीज़ें हो रही है आपके आसपास, जो कंट्री में हो रही है, और जिस सर्विस के लिए आप जा रहे हो उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में थोड़ा पता कीजिए। आर्मी है तो आर्मी के बारे में पता कीजिए, एयरक्राफ्ट अगर आप एयरफोर्स के लिए तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में पता कीजिए। एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट है, डिफरेंट मतलब प्लेन्स है जो ऑपरेट करते हैं, उसके अंदर उसके बारे में पता है। जो नेवी के अंदर है तो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, डिफरेंट मशीन्स है, डिफरेंट डेवलपमेंट्स है, और जो एक्सरसाइजेस है जैसे मैंने मेंशन किया,
उनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी तो कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूरी है आपके अंदर। और बस हाँ, बिलीव कीजिए अपने ऊपर, अपने आपके थॉट्स के ऊपर, आपकी थिंकिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो सोचते हो वो सच हो सकता है, वो सही है, वो सही, ये सोचिए आप बस, तो उससे क्या आप कर सकते थे इसको। ओके, वेरी वेल सेड। सो नाउ आई टॉक अबाउट योर फेवरेट टास्क, है ना, जीटीओ। आपने भी बताया कि यू डिडंट टुक एनी कोचिंग, एंड आपको भी पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ग्राउंड पे फर्स्ट टाइम वो ऑब्स्टेकल्स को फेस करना। सो जब आप फर्स्ट टाइम गए उधर, यू वर फिजिकली फिट, फिर भी आपको क्या चैलेंज लगा और उसको कैसे ओवरकम किया? नहीं मैम, चैलेंज ये था कि ऑब्स्टेकल्स हम पहली बार देख रहे थे, मैंने पहली बार देखे थे ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल्स जिंदगी में, ऐसा कुछ मतलब कुछ भी दे रहे थे टेढ़ा मेढ़ा मेढ़ा। लेकिन जैसे जैसे वो टास्क आगे बढ़ता है तो वो अपन को नर्वसनेस वगैरह सब कुछ चला जाता है, और धीरे धीरे उसकी यूज्ड टू हो जाते हैं, क्योंकि वो लगातार वो अपन को, एसएसबी का ये सबसे अच्छा पार्ट है जीटीओ का, क्योंकि ये लोग आपको समय देते ही नहीं है सोचने वगैरह का। एक के बाद एक टेस्ट होते जाते, एक के बाद होते जाते, तो आप उसमें यूज टू हो जाते हैं। फिर हमारे जो मतलब मेरा ग्रुप था वो बड़ा अच्छा था, तो ग्रुप ने मुझे बड़ा हेल्प किया, उनका इंटरेक्ट करता गया तो वो टास्क ईजी होते गए। और सबसे अच्छा आई वुड से एक जीआर सबसे अच्छा गया था, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, क्योंकि उस टाइम बारिश भी बहुत हो रही थी और सब लोग गिर रहे थे वगैरह, लेकिन फिर भी हमने पूरे जोश से वगैरह एकदम पूरा किया उसको। Okay, so best about this GOR is this war cry, no? What was the war cry of your group? It was Jai Shivaji. I didn't remember Jai Shivaji, Jai Maharani. It was something like that. It was good, but we didn't want that because there was just two groups. हम लोग सेकंड आए थे उसके अंदर, लेकिन बहुत मजा गया था, और हमारा ग्रुप बड़ा भी था। हम लोग कम से कम 2-3 बंदे ज्यादा थे उसके अंदर, उनके अंदर कम बंदे थे, लेकिन बहुत मजा आया था क्योंकि बारिश हो रही थी, सब लोग गिर रहे थे, गंदे हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे जोश के साथ जा रहे थे आगे। Okay, so that also like increase the group bondings, I guess, है ना? यस यस मैम, श्योर इट इज। ओके, अभी हमें पता है कि जीपीओ स्टार्ट्स विद दिस जीपी एंड जीडी, है ना? यस वो मैम। काफी डिफिकल्ट हो जाता है जीपी को फर्स्ट टाइम पे फेस करना। जनरली जब हम फ्रेशर एज अ फ्रेशर जाते हैं तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वी हैव नेवर सीन बिफोर, है ना, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जो है। सो वो आपने कैसे टैकल किया? मैंने एग्जांपल सॉल्व किए थे उसके लिए। जो हम्म। बुक एसएसबी की मैंने बुक मेंशन की, उसके अंदर काफी एग्जांपल्स थे उसके रिलेटेड, तो वो मैंने प्रैक्टिस किए। और वेबसाइट्स, काफी वेबसाइट्स अवेलेबल है ऑनलाइन जिसके ऊपर देख सकते हो डिफरेंट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेस के एग्जांपल्स, और उसके ऊपर एग्जांपल्स को अगर आप करेंगे एक बार, जब लिखना होता है, बाकी तो एक्सप्लेन और ग्रुप डिस्कशन की बात है जहाँ तक, तो आप फ्रेंड्स से इंटरेक्शन करेंगे, आपकी फैमिली से इंटरेक्शन करेंगे, और प्लस पर्सनल, आई वुड से पर्सनल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। खुद को जाने और क्या क्या जो वैल्यूएबल पॉइंट्स है जो आप रख सकते हो एक मतलब डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो बहुत जरूरी होता है। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और रेगुलर एग्जांपल्स को लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है उसके अंदर, ग्रुप एंड एक्सेस के अंदर। तो वो लिखेंगे, जैसे एग्जांपल लिखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्या कैसे कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या आपकी प्रायोरिटी हो सकती है इसी मतलब प्रॉब्लम के अंदर। ओके, जीडी के किस टाइप के टॉपिक्स थे? और अगेन सबको लगता है कि एक लीड लेके ही हमें बढ़ना चाहिए आगे, तो आपको क्या लगता है कि इज इट कंपल्सरी टू गो विद ओनली वन लीड, या फिर आप तीनों पे भी बोल सकते हैं? तीनों में बोलना चाहिए ऐसा लगता है। हमारे ज़्यादा टॉपिक्स थे वो ज़्यादा चाइना से रिलेटेड थे, पॉपुलेशन, हम्म। डेमोक्रेसी, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स थे, और हमारा ग्रुप भी अच्छा था, तो सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे अच्छे से, हम लोग बस आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे कुछ कोई एक पॉइंट रह रहा था तो उसके अलावा दूसरा बंदा उसको मतलब एग्री कर रहा था, अगर एग्री नहीं करा तो उसके मतलब कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट नहीं रखता था, लेकिन उसको एज ए क्या कह सकते हो उसको कंपेंसेट करने के लिए कोई अच्छा पॉइंट रखा था। तो आपको जैसे राइट। आपको हमेशा ग्रुप के साथ चलना चाहिए, ग्रुप हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा, पीछे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अकेले भीड़ में एकदम बोलते जाए, खुद कोई सुन नहीं रहा है, ऐसे नहीं, ग्रुप की सुनो फिर खुद भी बोलो, सबकी सुनना बहुत जरूरी है। तो टॉपिक्स इजी होते हैं, अगर आप नॉर्मल अगर आप अवेयर रहेंगे चीज़ों के बारे में, तब उनको पॉइंट्स रख पाओगे आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर। ओके, एंड स्पेशली फॉर लेक्चर एट अगेन, फिर वही यस बात है कि इंडिविजुअली यू हैव टू डिलीवर इट। फिर डर यस। लगता है कि ओके स्टेज पे सबके सामने जाना है, हाउ विल बी परफॉर्म, तो वो आपने कैसे किया उसकी प्रिपरेशन? इसमें उसके लिए आई वुड से, क्योंकि आप जैसे स्कूल्स में होते हो, स्कूल में हम्म। स्पीचेस, बहुत स्पीच कॉम्पिटिशन होते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें पार्ट लीजिए तो वो आप एक्चुअली वो डर निकल जाएगा, तो स्टेज फियर होता है। और वहाँ पर सब लोग इतना डर लगता नहीं है, क्योंकि ये सब दोस्त से होते हैं, सब अपने साथ साथ मतलब इतने दिनों से साथ रह रहे वो लोग, तो अपना वो बॉन्डिंग बन जाती है। उनको बस नॉर्मल से बोलना है, जो भी दिया जाए उसके बारे में कुछ मिनटों तक बोलना है, और नॉर्मल रहो, बस कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप कुछ आ भी नहीं रहे तो भी आप कॉन्फिडेंस रहोगे, छोटे छोटे पॉज लेके बोलो, जो वैल्यूबल पॉइंट्स है उसको आगे रखो, और हर बार हर एक पॉइंट को रिपीट मत कीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग रिपीट कर जाते हैं, अगर फंबल होते तो थोड़ा स्टॉप लो, फिर आप इससे स्टार्ट करो, नहीं भी आ रहा तो भी रुको,
सोचो भले, फिर टाइम लो, फिर वापस से स्टार्ट करो, ये जरूरी है। Okay, can you mention some of the topics if you can recall? Yes, ma'am. I couldn't recall. It was the father of nation, and one topic was the yoga, about yoga, and one was child abuse, I remember, and women empowerment. Yeah, this is the topics that I remember. Okay, like topic were from a very general nature, right? Yes, yes, ma'am. Okay, and what about your IU, individual obstacles? As you have already practiced and you're a fit person, so I hope Yes. it was easier for you. But कैसा रहा आपका? Yes, ma'am. It was easy. It was really easy. वो क्या, इसमें कुछ इंसिडेंट भी हो गया था, क्या हुआ, हमारा टाइम खत्म हो गया था। मतलब टाइम हो गया तो सीटी बजाती है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन होता है कि दूसरा कैंडिडेट वो लाइन मतलब रेडी हो जाएगा। मेरे अभी 30 सेकंड्स बाकी थे, तो वो विसल बजाएंगे तो जीटीओ। तो मुझे लगा मेरा टाइम खत्म हो गया। मैंने कुछ थिंक 10 ऑब्स्टिकल्स कर दिए थे उस टाइम पूरे। तो मैं निकल रहा था, तो उन्होंने बोला अभी तुम्हारा टाइम है, जाओ जाओ ऑब्स्टिकल्स करो। तो उसके बाद और 3 ऑब्स्टिकल्स किए, और आई गेस मैंने थर्ड हाईएस्ट था मेरा ऑब्स्टिकल में। मैं 13 ऑब्स्टिकल्स किए थे पूरे मतलब बोर्ड के अंदर। अच्छा Right, था। so you were very good actually. यस है मैम। ना? Yeah, okay. अब ये कॉन्फ्रेंस में कैसा रहा? किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने आपसे पूछे? एंड लाइक इट वाज अ क्लियर कट थिंग, और आपका वहां पे भी मिनी इंटरव्यू टाइप दे कंडक्टेड? यस मैम, मुझे 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 लगा कि वो क्लियर कट थिंग नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि मैं भी ये सोच रहा था कि सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसा मतलब आपका स्टे था वगैरह। लेकिन जैसे मैंने एंटर किया तो सीधा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि गौरव, व्हाई डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग नेवी। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया उस टाइम। तो पहला क्वेश्चन ही ये, फिर मैंने वो आंसर दिया, फिर और क्वेश्चन पूछते गए कि एसएसबी का में प्रिपरेशन कैसे किया आपने, कौन सी बुक्स पढ़ी आपने, प्लस कोचिंग वगैरह क्यों नहीं लिया आपने, और आपका मतलब क्यों नहीं लिया, आपकी क्या सोच थी, और फिर आपने सेल्फ प्रिपेयर कैसे किया, और बस ये था कैसा एक्सपीरियंस था आपका। बस नॉर्मल था। तो मुझे लगा है कि इसमें बॉर्डर लाइन केस भी हो सकता था उसके अंदर, इसलिए उन्होंने मेरा मिनी इंटरव्यू भी लिया था थोड़ा। बट दीज आर तो बेसिक क्वेश्चंस, नो? यस मैम, लेकिन वो क्वेश्चन किसको पूछा नहीं था ना। हम्म। व्हाई डू थिंक यू आर सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग नेवी, एसएसबी प्रिपरेशन कैसे की वगैरह, ये बाकी किसी को पूछा नहीं था हमारे बोर्ड के अंदर। बाकी सबको बस नॉर्मल 1-2 मिनट इंटरव्यू चल रहा था उनका, कि स्टे और फूड फैसिलिटी वगैरह कैसे थी, बस और फिर जाइए। Okay, so how many got recommended from your board? 4 of us got recommended. Okay, great. And you said just now that you went to Vizag, right? Yes ma'am. So how was the board actually, and what is your suggestion for those who are going for the SSBs at Vizag? यस मैम, आई फाइंड इट वेरी गुड बोर्ड मैम। मैंने जितना सुना था मतलब बाकी बोर्ड्स के बारे में जाने से पहले, और जहाँ मैं गया था तब, कि Mm-hmm. बहुत लोग वहाँ पे रिपीटर्स भी थे, तो वो लोग बता रहे थे कि हम इलाहाबाद गए थे, बेंगलोर गए थे, वहाँ पे कैसा था। और यहाँ पे वाइजैक में मानो तो काफ़ी अच्छा था, फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे लिबर्टीज भी मिलती, जहाँ की जो कि दूसरे एसएसबी में शायद तक नहीं मिलती है। तो लिबर्टीज भी थी, और अच्छा था, एकदम लीनियंट बोर्ड है। अगर आप अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस रखें और थोड़ा सा एवरेज पर्सन है, थोड़ी प्रिपरेशन करके जाए, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। क्वाइट गुड बोर्ड है ये, काफ़ी एंजॉय किया Okay. मैंने। All right. So now if I'll talk about the merit list. So merit list has just came and you have your name at 85th, I guess. यस मैम। Right. So how was that moment when you got that name on the list, and how did you celebrated it? It was a great moment, man, because I didn't expected that much good result. I was expecting Mm-hmm. between 150 to 200, but once I got the name, I was really excited. My mother got cried, and all this happened. It was a great moment for me. Okay. And what are your preparations for joining the academy? I am just working on a physical strength and endurance as far as, Mm-hmm. and just meeting all my friends. So just because after academy, I don't think I'll get much time to be in touch with them. So I'm just meeting all the relatives and all my friends. I just visited my village, and that's it. I'm spending a lot of more time with my family. Okay. Okay. What is the importance of hobbies, having good hobbies for the SSB, and what kind of hobbies did you have? And what will be your suggestions for those, again, for the aspirants to have hobbies about? Right, ma'am. Hobbies do play a great role, major role, because in the PIQ form, there is a column about hobbies. You have to write your Mm-hmm. hobbies, and in the interview itself, they do ask you about your hobbies, and how these hobbies help you to uh, prepare for this examination, prepare for the SSB. So they do play a good role, because it helps you to every day to grow. There are many good hobbies like reading books or music. It could be painting, or it could be singing, anything, dancing, something like that. It do help you to grow in a way.
my hobbies were reading books and sports, so that helped me a lot, because in sports it actually help you to develop a physically, and books in a way that helped me to increase my communication skills, plus improve my spoken English. These are the ways that these hobbies help me for the SSB. Okay. Also, as you said that you have been connected with SSB crack exams since so long. Yes, Like, ma'am. can you help me? What role did SSB crack played in your preparation, and how was it helpful for you? Yes, ma'am. I have been in touch with SSB crack. I was since last 1.5 years, if I remember. It helped me a lot through his videos of different entries and different notification that comes on different entries, different defense updates that come through different articles, and also the interview of the toppers that clears the examination. I actually came to know about defense in a larger way through this platform only, through its videos, through its defense videos, through its different documentaries that are being made on this different academies and all. That helped me a lot, I'd say. Okay, so you prepared by watching the videos of the toppers, and now you are one of them. Thank you. So many congratulations again for your success, Gaurav, and I hope you have a very wonderful journey in the academy as well. So would you like to give the last and the most important tips and tricks, or the suggestions, whatever, for our upcoming aspirants who are going for NDA entry or even any SSB entry? And yeah, please. I would say just be confident, and just feel confidence on your own strengths, and don't feel that you are any lesser than any other person out there, any other candidate that is appearing for SSB. Just have focus, have confidence on your own strengths, on your own abilities, and you will get it. And be honest. That's it. Okay, so thank you so much again, Gaurav, and we salute you for your success. All the very best, and have a great journey ahead. Thank you so much. Thank you, ma'am. I hope Mr. Gaurav के इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. And for all those who are going for the upcoming SSBs, all the very best, guys, and I wish for your recommendation. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी अपने SSB के लिए जाने वाले हैं. So this is it for today, and I'll come back with such insightful interviews again. Till then, all the very best and have a great day. Keep learning, keep growing. Bye bye, guys. Jai Hind. दोस्तों, अगर आप एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं।